everyone, what's up? In today's session, we are going to quickly revise the AMD, one of the simplest chapter. And I promise by the end of this video, you will feel like a pro. So let's do this together. Before we jump in, let me ask you one question. Why AMT? Why should we care about it? Huh? Well, I'm going to tell you exactly what it is with the help of an example. Okay. So let's suppose you are running a business and you have invested a business in a special economic zone. So as you know that Income Tax Act give you some benefits. Like if you invest in the special economic zone, you can take the deduction under section 10AA. One more example we can take, if you have invested in a business in a backward area, you also get another deduction under chapter 35AD, right? So let's suppose you earned a 50 lakh of profit from that business, but after applying these deductions, your taxable income becomes zero, yeah, very little. So technically, you pay almost no taxes, even though you earned a good profit. So what is the problem here? The problem here, the government ने realize किया कि some people are using too many deductions and they are paying little या no tax. So government कहती that is not fair, right? Especially when others with a similar earning, right, they are paying a lot of taxes. Why not you? So that's why they have introduced the AMT. What actually they said, okay, you can still enjoy this deduction, but you must pay the minimum tax no matter what. So now, like if you have a regular income is zero, the regular tax is zero. Regular means the tax that you are paying as per the normal provision of this act. Okay, if it is zero, like because of the deduction, so no, now the government wants to check कि is your adjusted total income is high. अब एडजस्ट टोटल इनकम मतलब अभी हम पढ़ते हैं एटीआई क्या है. अभी ये सब समझो कि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम अगर ज़्यादा है, इफ़ येस देन यू हैव टू पे 18.5% टैक्स प्लस सेस ऑन दैट इनकम. इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ, AMT मेक श्योर everyone wants to pay some minimum taxes. Like if they legally reduce their taxes using deduction क्यों ना हो, but you have to make the you have to pay some minimum taxes. They want to make sure that no one escape the tax completely but just by using this deduction. Got it? तो ये आया था इसलिए AMT इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था. Got it? चलो, so let's revise this chapter. Let's break it down this chapter. Okay. पहला पॉइंट आता है यहाँ पे आपका when, कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है. इफ़ यू आर क्लेमिंग दिस डिडक्शन, अगर आप ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हो लाइक अंडर चैप्टर 10AA 35AD या चैप्टर 6A फ्रॉम ATI से लेकर ATRRB, आई एज्यूमिंग कि आपने डिडक्शन चैप्टर रिवाइज कर रखा है. अगर आप ये 3 डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो एंड योर रेगुलर इनकम टैक्स, अभी रेगुलर इनकम टैक्स का मतलब एज पर द नॉर्मल प्रोविजन एक्ट, ठीक है, जो आप इनकम टैक्स पे करते हो. अगर आपका रेगुलर इनकम टैक्स इज़ लेस देन AMT, देन आपको AMT आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, क्या एप्लीकेबिलिटी है? इफ़ यू आर क्लेमिंग दिस डिडक्शन एंड योर इनकम टैक्स इज लेस देन AMT, देन यू हैव टू पे AMT. गॉट इट? ओके. अब क्या है, AMT कैलकुलेट करने के लिए हमें सेकेंड स्टेप आता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे. हाउ? आपको पहले एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैंने आपको बताया था ATI याद है, मैंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया था कि AMT अगर ज़्यादा है तो यू हैव टू पे 18.5%. तो ATI है क्या? ATI कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले देखते हैं टोटल इनकम क्या है. अब टोटल इनकम का मतलब क्या है यहाँ पे? टोटल इनकम का मतलब है कि the normal that the income that you would calculate normally after taking deductions हो गया, exempt income हो गया, like you are filing under the normal provision. उसके बाद आप क्या कर रहे हो? ऐड बैक कर रहे हो डिडक्शन अंडर चैप्टर 10A. 10A ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये इनकम अर्लियर एग्जेम्प्टेड थी, राइट. अब गवर्नमेंट चाहती है कि SEZ बिजनेस वाले भी दे वांट
SEZ बिजनेस वाले की टैक्स पे करे, ठीक है, इसलिए उस डिडक्शन को ऐड कर दिया, ठीक है। 10 पहली डिडक्शन कौन सी ऐड हुई है, 10AA, गॉट इट, रीज़न समझ आ रहा है, ठीक है। 35AD, अब बोला कि 35AD की भी डिडक्शंस ऐड होगी बिकॉज इट्स अ हाई डिडक्शन, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अलाउड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी एडेड होगी। अभी इसका रीज़न थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। अभी ये सोच लो कि ये भी डिडक्शन 35AD की भी ऐड होगी क्योंकि इसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो 80IA से लेकर 80IRB तक डिडक्शन ऐड होती है। ये बेसिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक बेनिफिट्स डिडक्शंस होती है जिससे आपके ज़ीरो टैक्सेस हो जाता है। तो AMT कैलकुलेट करने के लिए दे वांट टू ऐड इट बैक। तो हमें कौन सी डिडक्शंस ऐड करी है, एक तो 10AA, 35AD और चैप्टर 6A की डिडक्शंस, गॉट इट। उसके बाद हमने ये माइनस करा है डेप्रिसिएशन अंडर ऑन 35AD असेट। अब मैं आपको एग्जैक्टली रीज़न बताती हूँ कि क्या है। देखो मैं एग्जैक्टली बताती हूँ कि आपने 35AD की डिडक्शन ऐड की पर आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअली मोटिव क्या है, क्या रीज़न क्या है। देखो जब आप 35AD ऑप्ट करते हो तो आपको डिडक्शन किसकी मिलती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है। लेट्स सपोज उसमें कौन से बिजनेस है, कोल्ड चेन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, होटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है। अगर आप 35AD ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, यू गेट द डिडक्शन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप 35AD ऑप्ट नहीं करते, ठीक है, तो आइडियली दीज आर लाइक अ फिक्स एसेट्स, तो आपको उसके ऊपर ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन मिलता। अगर आप 35AD ऑप्ट नहीं करते सो दीज आर द लाइक एसेट्स ओनली, तो एसेट्स के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 वाला तो मिलता ना नॉर्मली, राइट। फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ, लाइक इफ़ यू स्पेंड 10 लाख ऑन अ मशीन, ठीक है, तो आपको डिडक्शन इमिजिएटली मिलता नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बट आपको डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर लेते हो PGBPB के अंदर, ठीक है। बट अगर इफ़ यू ऑप्ट 35AD तो आपको क्या है, इमिजिएटली 10 लाख का डिडक्शन मिल जाता है, वॉट एवर यू एक्सपेंड ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर यू गेट द डिडक्शन, राइट। सो सिमिलर अगर मैं बोलूँ तो आपने क्या किया, अगर आप ऑप्ट कर रहे हो 35AD को, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिल गया। बट इफ़ यू लेट सपोज अगर आप ऑप्ट ही नहीं करते तो आपको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन तो मिलती ना आइडियली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यही तो किया, पहले तो ऐड करवाया जो डिडक्शन आपने 35AD के अंदर ऑप्ट की है, ठीक है। बट एक्चुअली इट इज़ अनफेयर उनके लिए जो जिनको डेप्रिसिएशन जो ऑप्ट नहीं करते, ठीक है, जिनको नॉर्मली डिडक्शन मिल जाती है डेप्रिसिएशन की। सो टू बी फेयर करने के लिए, तो AMT कैलकुलेट करने के लिए इनसे डेप्रिसिएशन की डिडक्शन माइनस करवाई, मतलब सॉरी डेप्रिसिएशन का सब्ट्रैक्ट करवाया कि जो भी आप डेप्रिसिएशन उन पर्टिकुलर एसेट में आप क्लेम करो वो तो आप क्लेम कर लो। लेट सपोज एग्जांपल समझाओ कि 10 लाख वाला है, 10 लाख का एसेट है, उसमें अगर आपको डेप्रिसिएशन 1,50,000 का मिलता है तो आपने अगर 35AD में 10 लाख का तो पूरा डिडक्शन ले लिया था, बट अगर आप 35AD की डिडक्शन नहीं लेते तो अल्टीमेटली आपको 1.5 लाख की तो डिडक्शन मिलती ना। अल्टीमेटली मैं नेट ऑफ तो 8.5 दिखाऊंगी ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस किया है, दैट इज़ द रीज़न। आपने पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया और आइडली मुझे डेप्रिसिएशन तो माइनस करना चाहिए जो कि मुझे एक्चुअली में मिलती है। ये तो हम ऐड इसलिए कर रहे हैं जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग द AMT, राइट। अगर यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किए, आइडली तो हमें डेप्रिसिएशन की डिडक्शन तो मिलती है ना, करेक्ट। इसलिए यही रीज़न है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड किया और डेप्रिसिएशन उन पर्टिकुलर एसेट को माइनस करके, बिकॉज आपको आइडली वो डिडक्शन मिलती है। गॉट इट, रीज़न समझ आया यहाँ तक, ठीक है। आपने एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल ली। नाउ द फर्दर स्टेप इज़ दैट यू हैव टू कैलकुलेट जो आपका इनकम टैक्स था एज़ पर द नॉर्मल प्रोविज़न, जो आप इनकम टैक्स निकालते एज़ पर द नॉर्मल प्रोविज़न, और जो आपने यहाँ पे ATI निकाला था उसका आप 18.5% आप ATI कर लो, उसका 18.5% निकाल लो। उसके बाद सरचार्ज इफ़ एप्लीकेबल है एंड 4% सेस ऐड कर दो। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स निकाला एज़ पर द रेगुलर टैक्स, मतलब मैं अगर सिंपल सी लैंग्वेज में रेगुलर टैक्स या 18.5% ऑफ ATI दैट इज़ एडजस्टेड टोटल इनकम, जो अभी हमने कैलकुलेट करी। कैसे, इनकम प्लस डिडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन,
ठीक है। अब उसके बाद आपने निकाल लिया, ठीक है। आप उसके बाद आप कंपेयर करोगे, इफ़ AMT इज़ मोर देन रेगुलर टैक्स, अगर AMT ज़्यादा है रेगुलर टैक्स से तो आप AMT पे करोगे। गॉट इट? ये AMT की कैलकुलेशन हो गई ना अब, कि आपने 18.5% में निकाल लिया। अगर AMT ज़्यादा है रेगुलर टैक्स से, AMT पे करोगे। अगर AMT लेस है रेगुलर टैक्स से, आप रेगुलर टैक्स पे करोगे। सिंपल सी बात है। समझ आया यहाँ तक? फर्दर स्टेप 4 क्या आया? इफ़ AMT इज़ मोर देन रेगुलर टैक्स देन यू हैव टू पे द AMT, इफ़ द AMT इज़ लेस देन रेगुलर टैक्स देन यू हैव टू पे द रेगुलर टैक्स। बट अगर AMT ज़्यादा है रेगुलर टैक्स, ठीक है, तो इट मीन्स आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है। बट एक्चुअली आइडियली अगर हम नॉर्मल टैक्स पे देते तो हमने टैक्स कम पे किया था बिकॉज ऑफ डिडक्शन, बिकॉज वी हैव टेकन द डिडक्शंस, राइट। तो उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला ओके, अगर आपने AMT ज़्यादा पे किया है, मतलब AMT पे किया है, ठीक है, रेगुलर टैक्स से, तो आपका जो भी डिफरेंस होगा वो AMT क्रेडिट बन जाएगा और आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 15 असेसमेंट ईयर। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड याद है चैप्टर? वैसा उसको देखना है। अगर AMT ज़्यादा है रेगुलर टैक्स से, मतलब AMT आपने पे किया, इट मीन्स तो जो भी आपने ज़्यादा पे किया डिफरेंस दैट वुड बी अ AMT क्रेडिट और इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द 15 असेसमेंट ईयर। अब सेट ऑफ के लिए देखो, सेट ऑफ अलाउड है व्हेन द रेगुलर टैक्स ज़्यादा है। सेट ऑफ अलाउड कब होगा? जब रेगुलर टैक्स ज़्यादा होगा AMT से इन अ फ्यूचर ईयर में। और आप कितना सेट ऑफ कर सकते हो? टू द एक्सेस ऑफ रेगुलर टैक्स ओवर द AMT, ठीक है। आप कितना सेट ऑफ कर सकते हो? कितना जो आपका रेगुलर टैक्स क्या है, एक्सेस ऑफ रेगुलर टैक्स ओवर द AMT बेसिकली। आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी इसको, ठीक है, पॉइंट को। एंड एक और चीज़ इसमें, एक और अच्छा बेनिफिट है, आप क्लेम कर सकते हो AMT क्रेडिट को इवन AMT नॉट अप्लाई इन फ्यूचर, ठीक है। अभी पहले मैं इस पॉइंट को एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। एक मिनट देखो, अगर मेरा एक सेकेंड, हाँ, अगर मेरा रेगुलर टैक्स जो है, ठीक है, 120 है और यहाँ पे AMT पे आ जाओ, AMT मेरा 2 लाख है। इसमें मेरा AMT ज़्यादा है और रेगुलर टैक्स कम है, तो मैं कितना पे करूँगी? ऑब्वियसली AMT पे करूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल बनाती हूँ एक, लेट्स सपोज क्रेडिट सेट ऑफ और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे कितना पे करूँगी फर्स्ट सिचुएशन में? 120 या 2 लाख? 2 लाख पे करूँगी, तो मेरा कोई कभी सेट ऑफ तो कुछ है ही नहीं, तो मेरा क्रेडिट 80,000 बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है? 80,000, क्योंकि मैंने AMT ज़्यादा पे किया है। नेक्स्ट ईयर में मेरा जो रेगुलर टैक्स है 2,50,000 बना और मेरे AMT 2,10,000 करा हुआ, तो मेरा रेगुलर टैक्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू AMT। तो मैं सेट ऑफ कितना कर सकती हूँ? मैंने बताया था एक्सेस ऑफ रेगुलर टैक्स ओवर द AMT। तो रेगुलर टैक्स क्या है? कितना एक्सेस कितना है? 40,000। आप 40,000 ही सेट ऑफ कर सकते हो। तो मेरा अगर मेरा 40,000 सेट ऑफ हो गया तो मेरा क्रेडिट का बैलेंस कितना बचा? 40,000। गॉट इट? सिमिलर यहाँ पे थर्ड ईयर पे आते हैं, 3 लाख, ये 2,80,000 लेट्स सपोज, ठीक है। तो कितना मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ? 20,000 ओनली। तो मेरा क्रेडिट का बैलेंस कितना बचा? 20,000। एक और केस, अगर ये मेरा 1,50,000 है और ये मेरा 1,70,000, अब मेरा AMT ज़्यादा है, क्या मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ? नो, मेरा सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अल्टीमेटली जो मेरा बैलेंस क्या आएगा? अभी भी 20,000 रहेगा। गॉट इट? गॉट इट? तो मैंने यही समझाया यहाँ पे। देखो, अगर सेट ऑफ अलाउड है व्हेन अ रेगुलर टैक्स ज़्यादा है AMT से इन अ फ्यूचर ईयर में एंड लिमिटेड टू द एक्सेस ऑफ रेगुलर टैक्स, लिमिटेड टू द एक्सेस ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, लिमिटेड टू द एक्सेस ऑफ रेगुलर टैक्स। तो मैंने इतना ही एक्सेस आपका सेट ऑफ बनाया है। पर अगर इसमें केस में अगर ये ज़्यादा है AMT तो मेरे सेट ऑफ नहीं है। गॉट इट? तो यही था।
सो लास्ट स्टेप है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या है? अगर आप नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर मतलब इंडिविजुअल एच यू एफ हो, ए ओ पीज, बी ओ आईज हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ए एम टी टू पे द ए एम टी बेसिकली। अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम, ये ऐसे कर देना, इज लेस देन और इक्वल टू 20 लाख। गॉट इट? सो छोटा सा चैप्टर था और कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है, बस, ठीक है। सो थैंक यू।